Dear students, very good morning. I am Dr. Ravin Pasai, Associate Professor of Mathematics and Engineering Science Humanity Department at Chami Devi Group of Institution Indore. I welcome to all of you. Very good morning to you. Also, for the today's session. So, after 7 to 8 minutes, I will start today our session based on the relaxation method is one of the different iterative methods. Roll number 36. So before this, I will take your attendance. 49 and 21. Yes. Hariom Chauhan. After 7 minutes, I will start our lecture. For that, we wait for others. At sharp 10:05, we start our session. Because I will extend for 5 to 7 minutes of our lecture. I have taken your attendance. Don't worry, say hands. Number 52 and 39. (45) and 38. Your lecture of recording is started. Roll number 41 and 15. (28), 29, number 54, 45. I've taken already. 15 सर जी 15 क्या बेटा तुम्हारा? Then Sumit. Join with your roll number, Sumit. You will forget always. Any problem? To join by roll number 57, 50 or 50 18, 35. जब तक आप लोग नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, जो हमारा रिलैक्सेशन मेथड्स पे है उसका रिवीजन कर लीजिए। सभी के पास पीपीटी भेजी हुई है, नोट्स भी भेजे हुए हैं मैंने। जब तक हम लोग 4 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।
46, 42, 16, 56, 4, roll number 53, already admitted previously. Check your internet connectivity time being. Roll number 19. After 3 minutes, I call your attendance. Then I unmute to all of you. Roll number 48. वैसे मैं आपका साथ अटेंडेंस साथ साथ लेता जाता हूँ, जरूरी नहीं है कि अलग से दोबारा लूं. 31, इंद्रजीत चौहान 22, हो गया? हाँ जी बोलिए. 53 सर. 53. 50 53 रोल नंबर. हो गया बेटा. यस. सर 16. हेलो हाँ 16 तो तुम सर 16. हाँ हाँ गौरव 16 गौरव तुम्हारा तो पहले मैंने ज्वाइन किया हुआ है. Okay, I will call your attendance. Listen me, and then I share the screen. 28. Roll number 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57. And the roll number 30.
Just a minute, wait. Good morning to all of you once again. I'm Dr. Rohit Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamis Devi Group of Institution Indore. I welcome to you again for 9th lecture on unit number 2 as module number 2 of Mathematics 3. That is the relaxation method is one of the iterative method also, which is to be useful for solving again algebraic and transcendental equations very differently, yet we have not seen, you are also not seen. So let me understand the working procedure through by an example. For this, let me come to that slide. So this type of commitment given by the examiner, apply relaxation method. The system of equations, suppose we are having 3 unknowns and the equations are already set in the standard forms. Anybody wants to say anything? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मैटर है सर, एक बार फिर से बता। हाँ बता रहा हूँ। ये जब भी हमारे पास ये मेथड का नाम लिखा होगा रिलैक्सेशन मेथड, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में इस पैटर्न में हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन हमें इस पैटर्न में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। स्टैंडर्ड पैटर्न ये बोलता है कि ऑल अननोन्स आर इन लेफ्ट साइड एंड नोन टर्म ऑन दी राइट हैंड साइड। जैसे आपके पास ये इक्वेशन का पहला पार्ट है, पहली इक्वेशन है, तो इसमें आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड 3 अननोन्स दिए हैं, वो लेफ्ट साइड में है और 50 जो है नॉन वैल्यू है, नॉन टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में रखा है। इसी चीज को, इस ऑर्डर को अपन ने दूसरे कंपोनेंट के लिए, तीसरे कंपोनेंट के लिए मेंटेन किया है। जैसे पहले x लिखा है तो x की टर्म लिखिए, फिर y है तो y की टर्म लिखिए, और z है तो z की टर्म लिखिए, और फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में नॉन टर्म की वैल्यू लिखिए। यही पैटर्न हमने थर्ड पार्ट के लिए भी अडॉप्ट किया है, भले न्यूमेरिक वैल्यू प्लस में हो माइनस में हो, कोएफिशिएंट एज इट इज हमें यहाँ पर यूटिलाइज करना है। इसमें एग्जामिनर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा है, जब नहीं देगा तो आपको इक्वेशन की टर्म्स इधर उधर दी हो सकती है जिगजैग फॉर्म में, तो आपकी ड्यूटी बनेगी कि सबसे पहले आप इसको इस पैटर्न में अरेंज करेंगे। ये सबसे पहला सबक देगा बेटे आपको, इसलिए इसका नंबर 1 दे दिया है। और जो भी आप इस फॉर्म में यदि आप उसको सेटअप करेंगे तो उसको 1 नंबर देंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, -2x + 2y + 7z = 19। एम आई राइट? ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को? ये मैंने अभी तक की सभी सारी मेथड में ये जो पैटर्न है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अभी तक की जितनी मैंने पहले आपको 5 मेथड सिखाई है इस यूनिट में, तो उन सब में ये सेम ही था। ठीक है, अभी तक हम 5 मेथड सीख चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अभी हम ये 6 नंबर की मेथड सीख रहे हैं, जिसमें आपके सामने काफी चीजें बहुत स्लाइटली डिफरेंट आएगी जो आपने अभी तक देखी नहीं है। तो ये सबसे पहली स्टेप कॉमन है, जिसको मैंने फिर से आपके सामने रिपीट किया है। आप जो रिलैक्सेशन मेथड है ये भी एक इटरेटिव मेथड है, तो जितनी भी इटरेटिव मेथड होती है उन सब के लिए आपके पास जो ये कंडीशन होना जरूरी होता है, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग डायगोनल्स आर लार्ज एज कंपेयर टू अदर्स। इसका मतलब आपके पास कम से कम हर इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दूसरे कोएफिशिएंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे ये पहली इक्वेशन है, इसमें x का कोएफिशिएंट 9 है, y का कोएफिशिएंट -2 है और z का कोएफिशिएंट +1 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ गुराव? 9 - 2 और 1 में बड़ा कौन? 9 हुआ, am I right? फिर इसी तरह से
फिर दूसरी इक्वेशन आपके सामने है जिसमें y का कोएफिशिएंट है बड़ा, और जो तीसरी इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हैं x और y की तुलना में z का कोएफिशिएंट लार्ज है। तो 7 मतलब हम लोग इटरेटिव मेथड को अप्लाई करने की स्थिति में है, पोजीशन में है। राइट। अब क्योंकि अभी तक हम कुछ और तरीके से करते आए थे, गॉस जेकोबी का, गॉस सीडल का भी हमने अप्रोच अडॉप्ट किया। हमने पहले वाले से यदि x का कोएफिशिएंट है तो x का मान निकाला, y का कोएफिशिएंट बड़ा है तो y का मान दूसरे पार्ट से निकाला, दूसरी इक्वेशन से निकाला, और z का मान तीसरी इक्वेशन से निकाला। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेसिडुअल कैलकुलेट करते हैं। रेसिडुअल का मतलब होता है ये जो भी आपके सामने ये तीनों इक्वेशन दिए उसमें आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको आप लोग सब सारी टर्म लेफ्ट साइड की राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के बाद ये कहलाएगा x के रिस्पेक्ट में रेसिडुअल, जिसको अपन कैपिटल R सफिक्स x से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पर पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट लार्ज है तो जो टर्म्स होगी पहली इक्वेशन से जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको अपन रेसिडुअल विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट लार्ज है तो उसको रेसिडुअल विद रिस्पेक्ट टू y कहेंगे, और तीसरे वाले में आपके पास यो कोएफिशिएंट z का लार्ज है इसलिए उसको आप लोग z कहेंगे, rz कहेंगे। तो इस तरह से आपकी बातें इसमें प्लस होती जाएगी, वही हमने अगली स्टेप में आपके सामने लिखा है। ये देखिए जनाब, वी डिफाइन द रेसिडुअल, x के रिस्पेक्ट में जो रेसिडुअल होता है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, y के रिस्पेक्ट में जो होता है कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और अब z से, और z के रिस्पेक्ट में रेसिडुअल है उसको rz से डिनोट करते हैं। और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं बहुत आसानी से, जैसे अभी हमने आपके सामने आपको समझाया है उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई परिवर्तन नहीं है। तो देख लीजिए जनाब, हमने क्या किया, जो आपके पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट टर्म थी, उसके साथ में हमने वेरिएबल टर्म्स को शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो जो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलता है इसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप सभी लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स में करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपके सामने rx लिखा हुआ है, ry लिखा है, rz लिखा है, इसको नंबर 2 कह दीजिए। अब इसके बाद ये दूसरी स्टेप पूरी होती है तो फिर हम अगली तीसरी स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझिए तो आसान होगा। कोई भी टेक्निक है उसको आप स्टेप प्रोसेस से समझिएगा तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये जो हम इसके बाद इन रेसिडुअल को लेके जो टेबल बना रहे हैं वो आपके सामने, उस टेबल्स को अपन ऑपरेशनल टेबल्स कहते हैं। जो टेबल बनती है उसको हम लोग ऑपरेशनल टेबल बोलते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इधर आपका पहला कॉलम में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड होगा। एक्स के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है, इंक्रीमेंट है, उसको अपन 1 से डिनोट 1 वैल्यू लेते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में जो स्मॉल इंक्रीमेंट है उसको 1 से डिनोट करते हैं, 1 इक्वल टू 1 होता है। डेल्टा जेड इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर डेल्टा इंटू आर एक्स, फिर सेकंड कॉलम आएगा डेल्टा इंटू आर एक्स का, तीसरा कॉलम होगा डेल्टा ऑफ आर वाई का, और डेल्टा ऑफ आर जेड का। अब इस कॉलम की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो आपके पास सिस्टम और इक्वेशन दी हुई है उसमें जो आपकी पहली इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, उसको आप यहाँ पर पहले कॉलम, यहाँ के ये वाले कॉलम में लिख दीजिए तो आपको ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पहला कोएफिशिएंट है x का उसको अपन a1 से डिनोट करते हैं, y का कोएफिशिएंट है उसको b1 से डिनोट करते हैं, और जो z का कोएफिशिएंट होता है उसको c1 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन में x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको a2 b2 c2 से डिनोट करते हैं, और जो तीसरी इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं उनको हम a3 b3 और c3 से डिनोट करते हैं। जब हम इस तरह से कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टेबल का नाम ऑपरेशन टेबल कहा जाता है। देख लेते हैं एक बार, पिछली वाली स्लाइड पे जाके वापस ये बात समझ लेते हैं कि ये हमारी पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट याद रखिए दिमाग में, -9, 2 और -1 ध्यान रखना पिछली स्लाइड पे जाते समय।
देखिए 9 माइनस 2 एंड 1 यही था। दूसरी वाली इक्वेशन के कोएफिशिएंट थे 1 5 माइनस 3 और तीसरी वाली इक्वेशन के कोएफिशिएंट थे -2 2 एंड 7। ध्यान दीजिए। अब आ जाइए वापस अपनी स्लाइड के ऊपर, जो आगे की स्लाइड में मैंने आपको बताया है 2 माइनस 2 एंड -7। ठीक है, 2 माइनस 2 एंड -7 देख लीजिए एक बार। सर ये फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है सर? फर्स्ट कॉलम का मतलब है बेटे, जो आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, आपको जो इसमें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस की है, ठीक है, उसके जो कोएफिशिएंट है उसको कॉलम में आपने रिप्रेजेंट किया है ना, उसको कॉलम वाइज शो अप किया है आपने टेबुलर फॉर्म में। देखिए फिर से मैं वो टेबल पे आ रहा हूं आपके सामने। ये टेबल का यूज इतना ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम जो एज ए इनिशियल डाटा के रूप में ये वैल्यू रखते हैं। तो देखिए -9 2 और -1। देखिए पहले वाले आपके पास -9 आपका कहां पर है इक्वेशंस, ये रहा -9 2 और -1। ये रहा आपने जो रेसिडुअल डिफाइन किया है, ये रहा आपका रेसिडुअल में जो आपके पास ये इस साइड में जो वैल्यूज लिखी है XYZ के जो कोएफिशिएंट आपने शिफ्ट करके लिखे हैं, वो वैल्यू आपको कॉलम में लिखना है -9 2 -1। फिर इसके बाद चौथा कॉलम है उसमें -1 -5 एंड 3 और फिर लास्ट कॉलम है 2 -2 एंड -7। इसको कॉलम में लिखा है और कुछ नहीं किया अपन ने। ये देख लो 2 -2 एंड 7 जो रेसिडुअल का आपने डिफाइन किया है, उसी से हमने ये कोएफिशिएंट्स XYZ के इस कॉलम में लिखे हैं। फिर इस दूसरे रेसिडुअल जो Y के रिस्पेक्ट में है, उसके जो कोएफिशिएंट है इस कॉलम में लिखे हैं, और जो Z के रिस्पेक्ट में रेसिडुअल हमने अभी डिफाइन किया है, उसके जो कोएफिशिएंट है XYZ के, उसको अपन ने लास्ट कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, राइट। अब हम इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टेबल बनेगी वही खास है, जिसमें हम लोग इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास जो आंसर है, जो हमारा इंक्रीमेंट है, वो स्मॉल नहीं हो जाता, जिसको अपन एक रिलैक्सेशन टेबल के नाम से जानते हैं। तो ये पहले वाली जो टेबल बनी है इसको ऑपरेशन टेबल बोलेंगे, और दूसरी जो टेबल बन रही है जिस पर पूरे प्रॉब्लम का सलूशन का कारोबार है, मींस कारोबार डिपेंड है, पूरा इसके ऊपर ये डिपेंड है, वो हम लोग अलग अगली स्लाइड में ही समझाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहली टेबल सबको आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन दूसरी टेबल को आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें एक एक रो वाइज क्लियर करूंगा बेटे। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जब पहली रो लिखेंगे उसको ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ये जो पहला कॉलम है वो इंक्रीमेंट्स कहलाता है, दूसरा कॉलम रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, और फिर तीसरे कॉलम में आपके पास रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू वाई की जो वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन की है वो लिखिए, और जो लास्ट कॉलम होगा वो रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट वेरिएबल। और भी इसके आगे यदि आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ेंगे तो आपके सामने ये टेबल बढ़ती जाएगी। तो यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करना चाहेगा तो आपसे अधिक से अधिक 4 अननोन का क्वेश्चन करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अननोन से यहाँ पर तो आपको शो करने में पीपीटी में आपको दिक्कत जाएगी, कैलकुलेशन करने में भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसलिए उस पर सी प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिसकी हेल्प से आसानी से हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं, ये पहला रो हमने कंप्लीट किया है। अब उसके बाद दूसरी रो को कैसे कंप्लीट करना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी रो को स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को मालूम है अभी तक हम लोग जो इटरेटिव मेथड होती थी उसके लिए हमें इनिशियल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता था। एम राइट श्रेयांश? अभी तक जितने तुमने 3 इसके पहले 2 इटरेटिव मेथड सीखी है उन सभी में आपको इनिशियल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता था। तो यहाँ पर भी हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन को 0 लेंगे। जब एग्जामिनर देता नहीं है तो हमें 0 लेना है, और जब एग्जामिनर दे देगा तो वो एज इट इज यहाँ पर यूज करना है। एम राइट? दोनों तरीके से चीजें क्लियर कर रहा हूं बेटे। इनिशियल सॉल्यूशन कभी कभी एग्जामिनर दे देता है,
तो उसको एज इट इज यूज करना है। जो भी एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू दे रखी है या कॉमन वैल्यू दे रखी है, और जब एग्जामिनर नहीं दे तो आप कॉमन वैल्यू 0 ले लेंगे। हाँ मुकेश बताएं बेटा क्या कहना चाहते हो, म्यूट करके हमसे क्वेश्चन पूछिए बेटे। मुकेश ने कोई क्वेश्चन पूछा है मुझसे। सर एक बार और समझा दो। देख पहला रो जो बनेगा इस टेबल का, उसको उसमें पहला कॉलम होगा इंक्रीमेंट्स कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है उसको आपको दो चक्कर मारूंगा यार, और बेटा ये क्योंकि मोबाइल साइलेंट पे नहीं हो पाया, इसमें मेरे बच्चे की भी क्लास साथ में चल रही है। सो दूसरा कॉलम रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको अपन ने सिंबल से आरएक्स से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, उसको यहाँ पर टेबल में लिखना है और कुछ नहीं करना है। फिर इसी तरह से आपके सामने ये रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखना है, फिर रेसिडुअल विथ रिस्पेक्ट टू जेड लिखना है। ये सभी लोग कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है इस टेबल का पहला रो बनाना। आप कम से कम पहले 3 रो सीख जाएंगे तो इसके बाद आप इसकी इस तरह से अनंत रो बना सकते हैं। जब तक आंसर डिजायर एक्यूरेसी का नहीं आएगा तब तक हम इस मेथड को रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटे, तो गाइस पहली रो को कंप्लीट कर लिया सभी ने। आप मैं रिपीट कर रहा हूं दूसरी रो को कैसे स्टार्ट करना है। दूसरी रो मतलब इनिशियल सोल्यूशन। इनिशियल सोल्यूशन को ही हम डेल्टा की भाषा में डेल्टा ऑफ एक्स, ग्रीक लेटर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के रूप में शो अप करते हैं, जिसको एज ए इंक्रीमेंट कहा जाता है। रिलैक्सेशन की मेथड की भाषा में इसको इनिशियली हम लोग इंक्रीमेंट्स बोल रहे हैं। तो शुरुआत में हम इंक्रीमेंट 0 लेके चल रहे हैं, मतलब इनिशियल सोल्यूशन 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने कुछ दिया नहीं है। यदि एग्जामिनर कोई भी इनिशियल सोल्यूशन आपको देगा तब आप लोग वो वैल्यूज एज ए इंक्रीमेंट में आप इनिशियली ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। दैट्स ऑल ब्यूटीन, बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। और ठीक उसके सामने आपको ये चीज भी क्लियर हो रही होगी सभी को, कई जो ज्यादा चार्मिंग स्टूडेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है, जिनका माइंड बहुत शार्प है, उन्होंने ये बात पिक कर ली होगी कि ये वैल्यू कैसे आई है। बताओ, कुछ नहीं किया है मैंने बेटे। ये जो आपके पास RX लिखा है, रेसिडुअल लिखा है, इसमें XYZ की वैल्यू आपके सामने है, आपने 0 मान के चले हैं, वो वैल्यू यहाँ पर रख दी है और इसको सॉल्व कर लिया है। तो पहली स्थिति में पहले आपने रेसिडुअल विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया है। XYZ जब इनिशियल सोल्यूशन 0 माना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R की वैल्यू आएगी वो आपके सामने क्या आएगी गाइस? गौरव चौहान, जहां पर मेरा पॉइंटर है, ये 50 कैसे आया, समझ में आया सभी को? अरे 50 वैल्यू जो आई वो समझ में आई? आप में से कोई भी एक स्टूडेंट मुझसे बात कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन है पूछ सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे टाइम के साथ आपकी डाउट्स क्लियर करता रहा हूं और अभी भी करता रहूंगा। दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए, ताकि आपको उसके बाद रिवीजन करना है। 2-3 क्वेश्चन जरूर करना है, 3 क्वेश्चन इस मेथड पर। हाँ जी बेटे, कौन बोल रहा है अभी क्लास में? सर शेखर सर 50 एक बार बता दो कैसे है। देख बेटे देख, हाँ तो ये यार ये स्क्रीन में ये भी दिखता है बेटे। देख RX निकालना है, RX मतलब रेसिडुअल की वैल्यू तेरे को निकालना है XYZ 0 की। यस सर, रख दे यहाँ पर, आ गया? हाँ तो ये कहलाता है रेसिडुअल करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल सॉल्यूशन या करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट्स 0, थैंक यू सर, है ना? करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट 0, ऐसा इसको अपन टेक्निकल भाषा में कहेंगे। इसी तरह से तो RY निकाल सकता है, RY के लिए यहाँ पर 18 है आएगा और RZ आपके सामने 19 आएगा। मैं हर बार RX RY RZ लिखूंगा नहीं, ऊपर एक बार लिख दिया है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर इवेल्युएट हुई है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मेथड का गौर कीजिए, जो कि बार बार रिपीट होगा। क्या है? कुछ लोगों ने रीजनिंग करके बात फाइंड कर ली होगी। अब बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपको ये दूसरा तीसरा चौथा कॉलम लिखना है, मतलब आपको जो भी ये रेसिडुअल निकालना है, उसके पहले आपको ये इंक्रीमेंट्स की वैल्यू क्लियर करना पड़ेगी।
तो आप ध्यान रखना है बेटे, इनिशियली तो अपने को क्लियर है, अभी तक हमने कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहे थे, यहां पर अब हम कुछ डिफरेंट तरीके से इस पर काम कर रहे हैं आपके सामने। हमने 10 मिनट का टाइम आगे एक्सटेंड कर दिया है 2-3 स्टेप को मिनिमली समझने के लिए, फिर आप लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और फिर जितने x की वैल्यू आपके लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट होगा उनको सबको जोड़ दीजिएगा तो x का मान मिल जाएगा, और सारे y की वैल्यू डेल्टा y की वैल्यू को आप जोड़ देंगे तो y मिल जाएगा, और सारे डेल्टा ऑफ z को जोड़ देना, इस कॉलम में जितने इंक्रीमेंट की वैल्यू आएगी वो आपके सामने z की वैल्यू होगी। तो जरा गाइस हम इस बात को पहले समझ लें। देखिए बेटे, अब क्या करना होता है, ये जो आपके सामने 3 रेसिडुअल आपने लास्ट निकाले हैं, ये रहे लास्ट वैल्यू 50, 18, 19। अब इसमें से सबसे लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो आपको पहले सिलेक्ट करना है। सिंस तो 50, 18 और 19 में से लार्जेस्ट कौन है? न्यूमेरिकली लार्जेस्ट का मतलब है साइन को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी आपको हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव मिले, तो आपको उसके मैग्नीट्यूड को गौर करना है। जैसे यहाँ पर यदि आप बोले 2, -1 और -7, तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 7, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम अगली बार के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 50, 18 और 19 में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेसिडुअल जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, तो उसको हमने क्या किया है, स्मॉल इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए, और चूंकि आपके पास x चूंकि लार्जेस्ट है रेसिडुअल में, तो इसलिए इसको हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास x का जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है वो 9 है। ध्यान रखना, न्यूमेरिक वैल्यू लेना, ये कोएफिशिएंट को जब भी डिवीजन की बात आएगी तो न्यूमेरिक वैल्यू लीजिएगा, और आप लोग और कोई वैल्यू नहीं लेना है। ध्यान रखना, x की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जेस्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो x की लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है, तो आपने जो लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट किए रेसिडुअल उसको 9 से डिवाइड करना है और उसका राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिखना है। तो आपके पास 9 पंजे 45, 4.5 आएगा, तो इसमें 4 आपकी जगह अपन ने 5 ले लिया है, ठीक है। अब ये 5 ले लिया है, अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन फिर से रेसिडुअल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटे, अब इस रेसिडुअल को निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या क्या है, मतलब डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 5 है, इसके पहले थी 0, तो 0 + 5 5, तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में -50 - 9 × 5 + 2 × 0 और -z = 0, ये आपके पास इसके पहले y और z के जो रेसिडुअल हैं वो एज इट इज लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपके पास इसका जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो 5 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ये भी वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। रखिए सभी लोग, ये इंक्रीमेंट 5 निकाला आपने, डेल्टा x की वैल्यू निकाली, पहले डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0 थी, 0 + 5 मतलब 5, तो x की जगह 5 रखना है इस फॉर्मूले में, और y की जगह 0 रखना है, z की जगह 0 रखना है, क्योंकि अभी z और y में कोई अपडेशन नहीं हुआ है। जब आपके पास अपडेशन होगा तो उसमें एड ऑन होके वो वैल्यू यूज की जाएगी। ओके, तो अब आपके पास ये वैल्यू आपने यहां पर भी रखा, x की जगह आपको रखना है 5, y की जगह आपको रखना है 0, z की जगह आपको रखना है 0, तो आपके पास इस तरह से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 13 आएगी। एम राइट? तो 18 - 5 कितना होता है? 13। तो आपके पास इस तरह से y की और z की वैल्यू तो इनिशियली आपके पास 0 है, तो यहाँ पर 0 ही रखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर बेटे लास्ट में rz की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो x की जगह आपको 5 रखना है और y और z की वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि अभी तक आपके पास 0 है, इनिशियली वैल्यू आपके पास 0 है। ओके, फिर से बता रहा हूं बेटे, फिर से ध्यान दीजिए, ये स्टेप समझेंगे तो इसी बात को हमने कंटिन्यू किया है, बार बार रिपीट किया है। तो आपके सामने इन तीनों में से जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होगा उसको, क्योंकि x का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट था, उससे अपने को डिवाइड करना है, वो आपके सामने अपडेट इंक्रीमेंट होगा। जैसे आप अपडेट सोल्यूशन निकालते हैं कि नहीं इटरेटिव मेथड में, x का जो नेक्स्ट अपडेट होता है उसको x1 से डिनोट करते हो, यहाँ पर x1 से नॉट डिनोट करते हो, अपन डेल्टा वर्ड यूज किया जा रहा है, इंक्रीमेंट शब्द यूज कर रहे हैं। तो 50/9 5 आया। फिर आपने ये जो वैल्यू है
यहाँ पर रखी, ये फार्मूला बेसिक है आपका, इसको बार बार यूज करेंगे हर इटरेशन में। तो 50 माइनस 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, क्योंकि आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू तो 0 से 5 पर पहुंच गई है, मतलब जो दोनों का जोड़ है वो 5 आ रहा है, 0 प्लस 5 5 आ रहा है, y और z में अभी कुछ एडिशन हुआ नहीं है तो इसलिए दोनों की वैल्यू 0 रखिए। तो यहाँ पर आप रख दीजिए बेटे, सॉल्व कर लीजिए। तो 9 पंजे 45 होता है, 50 में से 45 गया तो 5 बचा, प्लस का बचेगा तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का बचेगा तो माइनस का लेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सभी लोग, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से x की वैल्यू 5 रखना है और y और z की वैल्यू 0 रखना है। तो सॉल्व करने पर ये हमको 29 मिल रहा है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 10 प्लस 19 29 होता है, और ये दोनों तो वैल्यू आपके पास इनिशियली 0 है तो 0 रख देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट इटरेशन में न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन से आंसर आता है, लेकिन इसको हम एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं, इसलिए हमें इसको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा जब तक हमारे पास रेसिडुअल की वैल्यू 0 के पास में नहीं आ जाती, तब तक उतनी बार हमें इस मेथड को रिपीट करना होगा। तो एक बार और आपके सामने रिपीट कर देता हूं इस मेथड को। ये आपके पास 3 रेसिडुअल लेटेस्ट हैं, 5, 13 और 29। बताओ सबसे लार्जेस्ट कौन है? सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, कुछ भी छिपाया नहीं आपके लिए। 29। तो बेटा 29 को आप सोच के कोई बताएगा किससे डिवाइड करेगा 29 को, क्योंकि ये जेड की लार्जेस्ट वैल्यू है, तो जेड का लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे। और यदि y होता, यदि आप 13 लेते तो किससे डिवाइड करते? 2 से डिवाइड करते। ध्यान रखना, न्यूमेरिकली वैल्यू से डिवाइड करना है, माइनस प्लस से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा बेटे। तो जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है। तो आप 29 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28 होता है, और फिर इसके बाद 0.2 कुछ आता है, इसलिए अपने इसको राउंड ऑफ वैल्यू 4 ले ली है, और फिर सेम टाइप का जॉब किया है आपके सामने। फिर से हमने rx की वैल्यू निकाली है, एक को सीख लीजिए फिर से, कभी भी लाइट जा सकती है, मींस पावर क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी हो सकती है। तो 50 माइनस 9 इंटू एक्स, x की वैल्यू तो आपके पास अभी अपडेट नहीं हुई है, 0 प्लस 5 मतलब 5 ही है, तो x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह भी आप अभी 0 ही रखेंगे, क्योंकि आपके पास अभी कोई अपडेशन नहीं हुआ है, तो y की वैल्यू 0 देते जाइए। और z की वैल्यू आपको अपडेट हो गई है, 0 प्लस 4 क्या होता है? 4। तो आप रख रहे हैं 50 माइनस 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 और माइनस 4, कितना आएगा? जरा घटा के देखो, सॉल्व करके देखो, 1 आएगा। ये कर्सर मैंने इसलिए यहां पर रोक दिया है। इसी तरह से आप RY कैलकुलेट करेंगे, RZ कैलकुलेट करेंगे, और फिर से वही चीज करते जाएंगे जब तक ये रेसिडुअल की वैल्यू 0 के पास नहीं आ जाती, निग्लेजिबल 0 नहीं आ जाता, तब तक हम लोग उतनी बार इस प्रोसीजर से हम लोग रुके कंटिन्यू करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। ओके, तो हम अगली स्टेप आपके सामने बता देते हैं, फिर से हम इस स्लाइड पे आ जाएंगे आपके सामने, जो मैंने अभी आपको ऑरली बता रहा था, कैसे हम सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। Since the process of reducing residual is carried as all the residual become 0 or negligible, therefore the desired solution is to be obtained by adding up all these increments. जितने भी डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में उनको जोड़ देना, तो एक्स का मान मिल जाएगा, डेल्टा वाई की जितनी भी वैल्यू है लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम में उनको जोड़ देना, तो वाई मिल जाएगा तेरे को, और डेल जेड की वैल्यू जितनी भी है डेल्टा जेड की उनको जोड़ देना, तो तुम सभी को एक्स वाई जेड का मान सेपरेटली मिल जाएगा। तो वही हमने अगली स्टेप में समेशन का साइन यूज किया है। तो आपके पास x की जो सारी डेल्टा की वैल्यू थी, सबसे पहले 0 थी, फिर 5 हुआ, फिर इसके बाद 1 आई, फिर इसके बाद 0.13 आई, तो इस तरह से आपका x का मान आया 6.13। इसी तरह से y की वैल्यू जोड़ दीजिएगा, इसी तरह से z की सारी वैल्यू जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास z का मान मिल जाएगा। तो इस तरह का जो डिफरेंट मेथड है, इसी को रिलैक्सेशन मेथड के नाम से कहा जाता है। रिलैक्सेशन इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो रिलैक्स वैल्यूज हैं, रेसिडुअल्स हैं, वो टाइम बीइंग रिलैक्स होते जा रहे हैं, मतलब 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 0 की तरफ इसलिए आगे बढ़ने का बोल रहे हैं, इससे हमारा पिछले वाली स्लाइड आता है। बेटर सोल्यूशन के लिए हम लोग रेसिडुअल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ बोलिए बेटे, आप बोल सकते हैं। गौरव कुछ बोल रहा था बेटे? ये इसके पिछले वाली स्लाइड एक बार फिर से
हाँ फिर से जा रहा हूँ बेटे। इसके पिछले वाली स्लाइड एक बार फिर से बता देना सर। हाँ ये तुम्हारे सामने फिर से स्लाइड है। मैं तुमको पहले एंट्री दूसरी एंट्री